काला घोड़ा फेस्टिवल में बॉलीवुड का धमाका। शाहिद कपूर, तृप्ति दिमरी नजर आए और रोमियो फिल्म को प्रमोट करते हुए। फेस्टिवल की रंगीन महफिल में स्टार्स ने अपनी जादुई परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया। फनी फीलिंग राइट नाउ। मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ ना, एग्जैक्टली हियर इन 1996, which is what, 30 years back? 30 years ago. मैंने एक ऐड किया था जो मेरे ज़िंदगी का सबसे पहला ऐड था, और वो दैट हैड शाहरुख खान, रानी मुखर्जी एंड कजोल, और मैं उस टाइम 15 साल का था, 16 साल का था, और यस दैट वाज अ पेप्सी ऐड एग्जैक्टली। और यहाँ पे बस खड़ी हुई थी, यहाँ पे बस लगी हुई थी, और बस के ऊपर शाहरुख सर थे, कजोल मैम थी, रानी वाज देयर, और मैं 15 साल का, और ऊपर हम लोग डांस कर रहे थे। और एग्जैक्टली यहीं पे अगेंस्ट दिस विजुअल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी मुंबई विच इज़ फ्रॉम 1804, मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला शॉट दिया था कैमरे के सामने। So this is so crazy that I am here and it's been 30 years, और आज आप सब लोग मुझ में इतने इंटरेस्टेड है, उस दिन मुझ में कोई इंटरेस्टेड नहीं था। So it's so nice to be here, guys. We are very happy to be here. This is an amazing festival. It's a privilege to be here on this stage. Thank you so much for showcasing the song of our film Paan Ki Dukaan. Releasing on the 13th of Feb is Oh Romeo, and this is Romeo, and this is my Juliet, Tripti Dimri. And we're very excited to be here tonight and talk about the film and just give and take some love. Hello everyone. How are you doing? I'm very excited to be here. It's a dream come true for me. I was just telling my team कि मैं festival आती थी पहले अपने friends के साथ, and today that I'm standing on the stage and talking about my film, it's just a very special feeling. I'm very emotional right now. It's amazing. I'm very very happy and excited. विशाल सर का कुछ ऐसा है ना कि हम लोग यहाँ आने वाले थे, 7 बजे का टाइम था, मैं स्टेज पे आना था, 5:45 उनका मैसेज आया, मुझे थोड़ा बुखार है आज, तो मैंने लेट देखा, मैंने गाड़ी में आते हुए देखा, और उन्होंने लिखा था शाहिद आज तुम संभाल लेना, मैं फिल्म की मिक्सिंग में लगा हुआ हूँ, एंड आई हैव टू बी हियर विद द फिल्म। सो दैट इज़ द पैशन ऑफ द मैन। उनके लिए हिज फिल्म इज़ अबव एवरीथिंग एल्स। His passion for his cinema has shown in the last 25 years or 30 years of the work that he has done. वो सिर्फ फिल्म डायरेक्ट नहीं करते, वो फिल्म की कहानी भी लिखते हैं, वो फिल्म के डायलॉग्स भी लिखते हैं, वो फिल्म की म्यूज़िक भी बनाते हैं, और ये बहुत रेयर चीज़ है। वो गाना भी गाते हैं, ही इज़ गॉट ही इज़ अ वंडरफुल सिंगर। बहुत रेयर चीज़ है कि इतनी सारी चीज़ें एक ही इंसान में हो, लेकिन इसके लिए आई थिंक वो ना फिल्म जब कंप्लीट हो रही होती है ना, तो वो मतलब ही इज गोइंग मैड बिकॉज ही इज डूइंग टू मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम। बट दैट्स द मैजिक ऑफ विशाल भारद्वाज। जब भी हमने साथ में काम किया है, ही हैज़ जस्ट गिवन मी समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड मी, एंड देन ही इज समटाइम्स किक्ड मी एंड समटाइम्स किस्ड मी टू अचीव इट। How beautiful. So see, he's a fantastic filmmaker. मुझे वो ना मेरे डैड से मिले हैं। So मैंने देखा था when dad and him worked together in some amazing movies, मैंने उनको साथ में देखा था, and when he actually called me for Kamine, मुझे believe ही नहीं हो रहा था that I will feature in a film with Vishal Bhardwaj. So it's been a very long journey for us together. Now of course this is our 4th collaboration together, and Oh Romeo is a very different film that we've made together. It's Vishal sir finally said it at one of the radio station interviews. He finally said ये फिल्म मैंने क्लास के लिए भी बनाई है और मास के लिए भी बनाई है। So this is a film where we're trying to take cinema, to take a certain sensibility which is very personal to us, to as wide a audience as possible. It's an entertaining film, it's a very dramatic film, it's a very serious film, it's a very emotional film, it's a very funny film. It's a different world, it's a different experience, and we are super excited to share it with you guys. So please go and watch it on the 13th of Feb. I met him in the office and he said, Tripti, for him to thank me for doing this film just means a lot. He's such a big producer and he's been very very kind from day one. काफ़ी हंसी मजाक करते हैं वो, मतलब एक लगता है ना आपको प्रोड्यूसर इज इन द रूम सो दिस एनवायरनमेंट इज गोइंग टू बी सीरियस, बट इट्स नथिंग लाइक दैट। उनके अंदर का एक बच्चा अभी भी जिंदा है, एंड ही इज जस्ट सपोर्टेड ऑल ऑफ अस आई थिंक थ्रू एंड थ्रू। I think he's very funny.
Yeah, even on the set, he'll keep cracking jokes and, you know, make sure that everybody's calm, everybody's comfortable. And this was not an easy film. There were days where we had like many difficult scenes and we had to be emotional. But then, like, he would catch your mood. He would catch if you're being sensitive or if you're, you know, you need your time. You need to be, you know, in your own zone. And then when you're out of it, then he'll catch you and he'll try and get you out of that zone. I think that's a very special quality that he has. मुझे यूजुअली ऐसा मेरे साथ होता है कि जो मेरा को एक्टर होता है ना वो मुझे आके मुझसे बात करता है, फिर मैं थोड़ा सा खुल जाता हूँ क्योंकि मैं यूजुअली जब इस तरह की फिल्में होती हैं तो मैं फिल्म के मूड में रहता हूँ. सो कुछ दिन बीत गए, हमने कुछ सीन साथ में किए और मुझे रियलाइज हुआ यार ये तो मेरे से भी एक कदम आगे है. शी इज मोर शाय देन मी, शी इज मोर यू नो इंट्रोवर्टेड एंड इन हर ओन स्पेस. सो वन डे आई जस्ट वी वर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर और कई दिन हम साथ में बैठे और हम अपने जोन में थे, अपने जोन में थी, मैं अपने जोन. फाइनली आई वाज लाइक सो तृप्ति व्हाट्स अप दिस दैट थोड़ा बहुत एंड देन यू नो फाइनली वी ब्रोक द आइस. सो शी इज अ शाय गर्ल इनहेरेंटली. आई एम श्योर वो स्टेज पे भी जब आती होगी थोड़ा नर्वस फील करती होगी उससे पहले. हाँ, but you know this profession requires you to be out there to interact, लोगों से बातें करना. नहीं तो लोगों को लगता है आप रूड हो या आपको एटीट्यूड है, you know, तो ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है जब आप थोड़े शाय होते हो. So I kind of noticed that about Tripti and I felt like I wanted to reach out and make contact because you know this is firstly I have liked her work, loved her work, and I was very happy that we're doing this film together. And this film of course requires us to work closely as a team because this film में उसका जो रोल है और मेरा जो रोल है वो दोनों आके इस फिल्म को बनाते हैं. दिस इज दैट काइंड ऑफ फिल्म, यू नो, इट इज काइंड ऑफ अबाउट द बॉय एंड द गर्ल.